Hello, class 9 students. Today we will be discussing the topic on the story of a village, Palampur. And here we have come across how is land distributed between the farmers of Palampur. You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for the cultivation. In Palampur, about one third of the 450 families are landless, i.e., 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. जो पालमपुर विलेज है, गांव है, वहां पर कैसे लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, जमीन कैसे बंटी हुई है फार्मर्स के बीच में, ही हम अब पढ़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर में, कृषि में एंगेज्ड हैं, जो काम कर रहे हैं कृषि का, उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। और जैसे पालमपुर है, ये जो विलेज है, इसमें 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। एक तिहाई जो फैमिलीज, दैट इज 150 फैमिलीज, दे आर लैंडलेस। उनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु own land, 240 families cultivate small plots of lands less than 2 hectares. In size, cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. 240 जो फैमिलीज हैं वो बहुत छोटे छोटे लैंड्स पर, छोटे छोटे प्लॉट है लैंड्स के, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर, जो कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स हैं साइज में, जो आकार में 2 हेक्टेयर से भी छोटे हैं, उन पर वो कृषि करते हैं। और कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और जो फार्मर की फैमिली है, जो किसान की जो परिवार है, उसके लिए वो पूरी अच्छी इनकम नहीं होती उससे। इन 1960, गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed themselves with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is about 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's sons are not able to make a living with their land. They have to look for additional work during the part of the year. इसमें हम गोविंद की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर का लैंड था, जो कि जमीन थी और अनइरिगेटेड था, जिसमें सिंचाई नहीं हो रही थी। और उसके जो 3 सन्स की हेल्प के साथ उसने उस पर कृषि की। और उनके पास एक बुफेलो भी थी, भैंस भी थी, जिसकी दूध वगैरह बेच करके वो फैमिली अपनी इनकम बढ़ा रहे थे। जब गोविंद की डेथ हुई तो वो लैंड वाज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सन्स एंड 0.75 हेक्टेयर एक सन के हिस्से में आई। और उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपना जीविका इससे पूरी कर सके, और उनको एडिशनल और भी काम ढूंढने पड़े फॉर देयर लिविंग। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. These are, on the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो किसान है, उनके पास काफी 2 हेक्टेयर लैंड से भी ज्यादा है। और 60 फैमिलीज हैं जिनके पास मीडियम या लार्ज फार्मर्स है, जिनके पास अच्छे जमीन के टुकड़े हैं। तो here you see the work on the fields, wheat crop plowing by the bullocks,
and the spraying of insecticides and cultivation by traditional methods and the cultivation of modern methods. So now let us discuss other points. In the picture, can you shade the land cultivated by the small farmers? Why do so many families of farmers cultivate such small plot of land? उतना थोड़ा सा उनके टुकड़ा क्यों है? और distribution of farmers in India and the amount of land they cultivate is given in the following graph. Discuss in the classroom. You have to discuss it in the class. And now let us discuss this point. Would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur? Do you find a similar situation for India? Yes, you find such similar situations in India. In India, in villages, land is distributed unevenly. Who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large-sized farmers hire farm laborers to work on their fields. लैंड के बाद, जमीन के बाद जो मजदूर है, श्रम है, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का. फार्मिंग जो कृषि है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है. और जो छोटे फार्मर्स हैं अपनी फैमिलीज के साथ उनको लैंड्स को कल्टीवेट करते हैं, अपने फील्ड्स को वो कल्टीवेट करते हैं, उनमें कृषि करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, और वो खुद ही उसके लिए श्रम का काम करते हैं. और अब यह प्रॉब्लम क्या? आइडेंटिफाइड द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड्स इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस. फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज. जो फार्म में काम करने वाले मजदूर है, वर्ग है, वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है, और फैमिलीज cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the land. Farmers के पास अपना land का rights नहीं है, okay? मतलब उसको अधिकार नहीं है उनका अपना. और crops जो grown है उन पर भी उनका अधिकार नहीं है. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they have to work. जिस फार्मर किसान के लिए वो काम करते हैं उनको वो फार्मर्स इनको मनी प्रोवाइड करता है. और वेजेस कैन बी इन कैश. जो उनका जो वेज है वो दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड्स ऑफ क्रॉप. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो. कई बार उनको खाना भी मिल जाता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. क्षेत्र से क्षेत्र, हर क्षेत्र में डिफरेंट वेजेस प्रोवाइडेड. उनको डिफरेंट पे मिलती है और मनी प्रोवाइड होती है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. अगर क्रॉप से अच्छी अर्निंग हो रही है तो ज़्यादा वेजेस हैं, और मजदूरी है अगर कम है, क्रॉप से फसल अच्छी नहीं बिकती, अच्छी मतलब कॉस्टली फसल नहीं है तो उनको कम मजदूरी मिलती है. और इस तरह से एक्टिविटीज भी अलग अलग होती हैं फ्रॉम सॉइंग एंड हार्वेस्टिंग. देयर इज आल्सो वाइड वैरायटी इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार के जो अवसर हैं उनमें भी बहुत तरह की वैरायटीज है. और फार्म लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस. रोज डेली पेड वर्कर भी हो सकता है कि रोज का काम करके उसको रोज तनख्वाह मिल जाती है, वेज मजदूरी मिल जाती है. और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या तो पूरे साल के लिए एंगेज होता है या फिर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे क्रॉप फसल की जो हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है, तब उसको एंगेज करते हैं. डाटा Dala is a landless farm laborers who works on a daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. वो डेली वेजर है, मतलब रोजमर्रा
रोज उसको एम्प्लॉय होता है, वो मतलब दैनिक का मजदूर है, वो हर दिन उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है. द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹115. 115 रुपये गवर्नमेंट ने श्योर किए हैं, पक्का किए हैं कि इतना मिनिमम मजदूरी दी जाएगी कम से कम पर डे. बट द लास्ट ही get only ₹80. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. लोगों में काफी कंपटीशन है. So people agree to work for lower wages. वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. Dallas complained about this situation to Ramkali, who is another farm laborer. जो दूसरी रामकली भी, जो कि फार्म में, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर है, उसके साथ वो डिस्कस कर रहा है. तो दिस इज ऑल, they both are discussing the various situation. Both are among the poorest people in the village. Why they are poor? And here we will discuss. Gosaipur and Majoli are two villages in North Bihar. One of the total of 850 households in the two villages. There are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana, in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad और नागपुर. बिहार से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं काम करने के लिए बाहर प्रदेशों में जाते हैं. क्यों लोग माइग्रेट होते हैं? वाई डू पीपल माइग्रेट? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क दैट द migrants do at the places of destination? जहाँ वो जाते हैं, डेस्टिनेशन जो प्लेस है, वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या काम करते हैं, हम डिस्कस करेंगे. द कैपिटल नीडेड फॉर